Bismillahirrahmanirrahim. Dear student, Assalamu alaikum. This is our fifth lecture about radio and nuclear chemistry. My name is Dr. Rana Farooq Mahmood and the course code is CHEM 4122. In this lecture, we are going to study about the radioactivity. You know that some elements such as uranium and radium are radioactive elements, and an element is radioactive if the nuclei of its atom are unstable. The phenomena in which the nuclei spontaneously emit a nuclear particle and gamma radiation, transforming to a different nuclei is called radioactivity. The elements which undergo nuclear change are radioactive elements. The radioactivity is the phenomena related to the nucleus. The radiation emitted by the radioactive elements are alpha radiations, beta and gamma radiations. Earlier, you have studied the properties of alpha, beta and gamma rays. So स्टूडेंट हमने यहाँ पे रेडियो एक्टिविटी के बारे में देखा है। जैसा कि आप जानते हैं कि वो एलिमेंट्स जैसा कि यूरेनियम हो गया, ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं। और कोई एलिमेंट जो रेडियो एक्टिव होता है उसकी वजह क्या होती है कि उसके एटम्स के अंदर जो न्यूक्लियाई होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं। और इस फिनोमिना को जो कि स्पॉन्टेनियसली होता रहता है और गैमा रेडिएशंस और अल्फा रेडिएशंस, बीटा रेडिएशंस इनको एमिट करता रहता है, इसको हम कहते हैं रेडियो एक्टिविटी। वो एलिमेंट जो ये रेडियो एक्टिविटी शो करते हैं उनको हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट बोलते हैं। Dear student, in this slide we are going to talk about the comparative properties of alpha rays, beta rays and gamma rays. When we talk about the mass, alpha rays has the mass of helium nuclei, that is 4 AMU, while that the mass of beta rays is equal to the mass of an electron, which is 9.11 10 raised power minus 31 kilogram. And when this mass is written in AMU, it is equal to 0.0054 AMU, while the gamma rays are said to be massless. Talking about the charge of alpha rays, it has 2 unit positive charge. One unit positive charge is the charge of proton, which is equal to 1.68 10 raised power minus 9 coulomb, minus 19 coulomb. And we know that helium nuclei has 2 proton in it, so we multiply this charge by 2, and this is the charge of the alpha rays, while the charge of the beta rays is equal to the charge of an electron, that is minus 1.6 10 raised power minus 19 coulomb. And the gamma rays has no charges. These are chargeless electromagnetic rays. We can identify these rays by using some symbols. Alpha rays are denoted by He24, that is helium nuclei, while beta rays can be denoted by electron having -1 charge and almost massless, while gamma rays can be denoted by this symbol H nu. This is another symbol that is used for the donation of gamma rays, and these are also called electromagnetic waves. The speed of alpha rays is 1 over 10th of the speed of light, while speed of beta rays is 30 to 90% speed of light. While when we talk about the speed of the gamma rays, it is almost same that the speed of light, that is 3 into 10 raised power 8 meter per second.
And when we talk about the penetration power, alpha rays has the minimum penetration power, while the beta rays have some larger penetration power than the alpha rays, while that the gamma rays has the maximum penetration power. Talking about the ionization power, gamma rays has very less ionization power. If we say that the gamma rays has X ionization power, then the ionization power of beta rays is 100 times greater than the ionization power of gamma rays, while the ionization power of alpha rays is 1000 times greater than the ionization power of gamma rays. So alpha rays has the maximum ionization power. Talking about the fluorescence, fluorescence is a phenomena that when the radiation emitting from the nuclides are uh, when the radiation emitted from the radioactive nuclei like alpha rays, beta rays and gamma rays, and they fall on a zinc sulfide plate, that is photographic plate, they show fluorescence phenomena. A light is emitted from that photographic plate, and the phenomena shown by the alpha rays is very good, and it's uh, create maximum fluorescence, while that the phenomena of fluorescence created by the beta rays is a bit less than the alpha rays, and the gamma rays are very poor with respect to the fluorescence phenomena. अब हम रेडियो एक्टिव डिके की तरफ मूव कर रहे हैं, जिसमें हमें बताया जा रहा है कि रेडियो एक्टिव डिके क्या होता है, क्यों होता है, किस चीज़ पे डिपेंड करता है। तो इन सारी चीज़ों को हमने इस स्लाइड में पढ़ना है और आगे फिर इसको समझना है कि हम इसको मैथमेटिकली कैसे डिटेल से बता सकते हैं। The probability of decay of a radio element does not depend on the state of chemical combination, temperature, pressure, presence of catalyst, or even the age of the nucleus. तो ये जो प्रोबेबिलिटी है डिके की रेडियो एक्टिव एलिमेंट के लिए, ये ना तो उसकी केमिकल कम्बिनेशन पे डिपेंड करती है, ना ही उसके टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, ना प्रेशर पे डिपेंड करती है, ना प्रेजेंस ऑफ किसी कैटलिस्ट पे डिपेंड करती है, और ना ही उसकी एज पे न्यूक्लियस की डिपेंड कर रही होती है। आगे हम इसको अगर देखें तो फिर रेट ऑफ डिके के बारे में बताया गया है कि रेट ऑफ डिके, रेट क्या होता है? रेट होता है चेंज किसी भी चीज़ के अंदर विद रिस्पेक्ट टू टाइम। वो चेंज जो होता है वो कंसंट्रेशन में चेंज भी हो सकता है टाइम के हिसाब से, वो चेंज डिस्टेंस में हो सकता है जिसको हम वेलोसिटी कह रहे होते हैं, वो चेंज जो है वो एज में हो सकता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये टाइम के हिसाब से जो भी चेंज आएगा उस चेंज को हम बोलेंगे उसका रेट। Rate of decay of a radioactive element uh, does not number sorry rate of decay of a radioactive element denotes number of nuclei of its atom which decay in unit time। एक टाइम में कितने न्यूक्लियाई टूटकर अपने डॉटर न्यूक्लियाई में चेंज हो रहे हैं किसी भी रेडियोएक्टिव एलिमेंट के। तो टाइम के हिसाब से हम बात कर रहे हैं कि हमारे पास एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, तो वो टूट कर अपने डॉटर न्यूक्लियाई में जो चेंज हो रहा है वो कितनी देर में कितने न्यूक्लियाई अपने डॉटर न्यूक्लियाई में चेंज हो रहे हैं, इसी को हम रेट ऑफ डिके ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स बोलते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एक्टिविटी ऑफ द रेडियो एलिमेंट्स, इसको एक्टिविटी भी बोला जाता है रेडियो एलिमेंट्स की। If Tn is the number of nuclei that decay within the time interval delta t, तो अगर हमारे पास रिएक्शन स्टार्ट होने के बाद आधे घंटे बाद, एक घंटे बाद, एक हफ्ते बाद जितने नंबर ऑफ न्यूक्लियाई जो होते हैं वो बच जाते हैं या डिके हो जाते हैं उसमें अपने डॉटर न्यूक्लियाइज के अंदर, तो उसको हम कहते हैं कि वो हमारे पास क्या है, Dn है। Then the rate of decay at any time is given by the rate of decay
जिसको हम एक्टिविटी भी बोलते हैं, उसको लिखा जाता है डेल्टा एन ओवर डेल्टा टी। तो डेल्टा एन जो है उस टाइम हमारे पास जो रिमेनिंग न्यूक्लियाई हैं वो है, टोटल अगर हमारे पास 100 थे तो उसमें से डिके होने के बाद जितने बच गए उस वक्त, वो हमारे पास डेल्टा एन होंगे उस टाइम पर रिमेनिंग न्यूक्लियाई, विच इज माइनस साइन। वाई माइनस साइन इज रिक्वायर्ड? माइनस साइन हमने इसके साथ क्यों लगाया इस रेट के साथ? तो माइनस साइन हमने लगाया द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डिक्रीज विद द टाइम, क्योंकि पहले अगर हमने 100 न्यूक्लियाई लिए थे तो बाद में अगर उसमें से 60 निकल गए हैं, डिके हो गए हैं, तो बाकी कितने बच गए हैं? 40। तो इसका मतलब है कि न्यूक्लियाई जो होते हैं वो विद द टाइम डिक्रीज होते जा रहे होते हैं, इसीलिए ये माइनस साइन यहाँ पे लगाया जाता है। सो डेल्टा, फर्ज करें हमारे पास एक प्रोडक्ट ए है, यानी कि एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है ए, जो कि एक ए रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जो प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है। अब उसकी जो इनिशियल कंसंट्रेशन थी वो हम कहते हैं एन नॉट था, जब टाइम टी था, यानी कि जब डिसइंटीग्रेशन स्टार्ट नहीं हुई थी, डिके स्टार्ट नहीं हुआ था। फिर उसके बाद वो उस वक्त प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन भी ज़ीरो थी। फिर हम कहते हैं कुछ टाइम गुजर गया, टी इज इक्वल टू टी टाइम समथिंग, कोई टाइम हो गया, तो फिर क्या हुआ? फिर हमारे पास एन वन न्यूक्लियाई उसमें से कम होकर डाटर न्यूक्लियाई में चेंज हो गए। जितने कम हुए वो कहाँ चले गए? वो डाटर न्यूक्लियाई में चेंज हो गए। तो इस तरह से n माइनस एन वन इज इक्वल टू एन। तो ये n वो है जो रिमेनिंग न्यूक्लियाई है, जैसा कि यहाँ पे आपको दिखाया गया है कि फ़र्ज़ करें हमारे पास 100 न्यूक्लियाई थे, उसमें से 40 जो है वो कम हो गए। तो 40 जो है वो किधर चले गए? वो डॉटर न्यूक्लियाई में चले गए, तो रिमेनिंग न्यूक्लियाई हमारे पास कितने रह गए? 60। तो इसी चीज़ को लेके हमने उसका रेट ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट लिखना होता है, और फिर हम कहते हैं कि जो रेट है या डिके है या एक्टिविटी है, दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रिमेनिंग न्यूक्लियाई। जितने रिमेनिंग न्यूक्लियाई होंगे उसी हिसाब से उसका जो रेट होगा वो उस पर डिपेंड करेगा। और इसको हम लिख सकते हैं कि rate of change of remaining nuclei with respect to time is directly proportional to the n। यहाँ पे एक चीज़ आपको बताई गई है कि रेट ऑफ रेडियोएक्टिव एलिमेंट की जो रेट है उसको हम माइनस में क्यों लिख रहे होते हैं? तो माइनस में लिखने की वजह पिछली स्लाइड में भी हमने पढ़ा है कि एक तो न्यूक्लियाइज जो होते हैं वो कम हो जाते हैं, और इसको हम कैसे मैथमेटिकली निकाल सकते हैं कि माइनस साइन हमारे पास आ जाए? तो माइनस साइन को अगर हम निकालते हैं तो यहाँ पे ये हमारे पास जो है वो फाइनल 40 हैं, और इन ओरिजिनल हमारे पास क्या थे? वो ज़ीरो थे प्रोडक्ट जो डाटा न्यूक्लियाई थे। उसको हमने अगर 60 पे डिवाइड अगर हम देखते हैं तो उसमें जो रिमेनिंग बचे हुए हैं वो क्या है? वो 60 हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम इसको देख रहे हैं कि हम माइनस साइन को कैसे यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। तो माइनस साइन को डिस्कस करने के लिए हम ये कहते हैं कि जी हमारे पास जो न्यूक्लियाई इनिशियली मौजूद थे वो 100 थे, उसमें से 40 जो है वो डाटा न्यूक्लियाई में चेंज हो गए, तो रिमेनिंग कितने हो गए? हमारे पास 60। तो अब 60 जो है, 60 हमारे पास फाइनल अमाउंट है, और इनिशियल अमाउंट हमारे पास क्या थी? 100 थी। तो अगर हम फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं तो जो न्यूक्लियाई हमारे पास चेंज हो गए हैं डाटा न्यूक्लियाई में, वो 40, 40 के साथ क्या आएगा? माइनस आएगा। इसीलिए हम यहाँ पे जो है वो माइनस लिख रहे होते हैं न्यूक्लियाई डिकेड। इतने न्यूक्लियाई जो है वो डिके हो गए हैं माइनस का मतलब। तो यहाँ पे हम माइनस साइन इसकी अमाउंट के साथ लिख रहे होते हैं कि हमारे पास जो अमाउंट है वो कम हो गई है, और वो किस तरह से कम हुई है कि फाइनल अमाउंट हमारे पास ये रह गई है, जबकि इनिशियल अमाउंट हमारे पास 100 थी। तो 60 माइनस 100 विल बी इक्वल टू माइनस 40। तो ये माइनस जो है वो 40 के साथ अमाउंट के साथ लिखा जाता है। इस तरह हम फिर इस चीज़ को बता सकते हैं कि रेट जो होता है वो नेगेटिव में नहीं हो सकता। हम ये नहीं कह सकते कि कोई बाइक जो है वो -50 की वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, तो माइनस में तो नहीं कोई वेलोसिटी के साथ मूव कर सकती। तो यहाँ पे क्योंकि उसके अंदर नंबर ऑफ न्यूक्लियाइज जो होते हैं वो फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं तो वो कम हो जाते हैं, इसीलिए हमारे पास ये साइन जो है वो माइनस आता है। फिर हम इस इक्वेशन को आगे देखें तो ये यहाँ पे माइनस डेल्टा एन ओवर डेल्टा टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एन, और एन क्या है? हमारे पास न्यूक्लियाइड रिमेन्ड है। इस इक्वेशन को अगर हम यहाँ पे इक्वल लगाते हैं तो ये इक्वेशन आ जाती है माइनस डेल्टा एन ओवर डेल्टा टी इज इक्वल टू लेमडा एन। लेमडा एन इसमें क्या है? लेमडा इसमें है डिके कांस्टेंट,
या रेडियो एक्टिविटी डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट भी हम इसको बोल रहे होते हैं। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमने क्या करना होता है, इसको इंटीग्रेट करना होता है। अब हम रेडियो एक्टिव डिके की तरफ मूव कर रहे हैं, जिसमें हमें बताया जा रहा है कि रेडियो एक्टिव डिके क्या होता है, क्यों होता है, किस चीज़ पर डिपेंड करता है। तो इन सारी चीज़ों को हमने इस स्लाइड में पढ़ना है और आगे फिर इसको समझना है कि हम इसको मैथमेटिकली कैसे डिटेल से बता सकते हैं। The probability of decay of a radio element does not depend on the state of chemical combination, temperature, pressure, presence of catalyst, or even the age of the nucleus. तो ये जो प्रोबेबिलिटी है डिके की रेडियोएक्टिव एलिमेंट के लिए, ये ना तो उसकी केमिकल कॉम्बिनेशन पे डिपेंड करती है, ना ही उसके टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, ना प्रेशर पे डिपेंड करती है, ना प्रेजेंस ऑफ किसी कैटलिस्ट पे डिपेंड करती है, और ना ही उसकी एज पे न्यूक्लियस की डिपेंड कर रही होती है। आगे हम इसको अगर देखें तो फिर रेट ऑफ डिके के बारे में बताया गया है कि रेट ऑफ डिके, रेट क्या होता है? रेट होता है चेंज किसी भी चीज़ के अंदर विद रिस्पेक्ट टू टाइम। वो चेंज जो होता है वो कंसंट्रेशन में चेंज भी हो सकता है टाइम के हिसाब से, वो चेंज डिस्टेंस में हो सकता है जिसको हम वेलोसिटी कह रहे होते हैं, वो चेंज जो है वो एज में हो सकता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये टाइम के हिसाब से जो भी चेंज आएगा उस चेंज को हम बोलेंगे उसका रेट। Rate of decay of a radioactive element uh, does not number sorry rate of decay of a radioactive element denotes number of nuclei of its atom which decay in unit time। एक टाइम में कितने न्यूक्लियाई टूटकर अपने डॉटर न्यूक्लियाई में चेंज हो रहे हैं किसी भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट के। तो टाइम के हिसाब से हम बात कर रहे हैं कि हमारे पास एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, तो वो टूट कर अपने डॉटर न्यूक्लियाई में जो चेंज हो रहा है वो कितनी देर में कितने न्यूक्लियाई अपने डॉटर न्यूक्लियाई में चेंज हो रहे हैं, इसी को हम रेट ऑफ डिके ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स बोलते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एक्टिविटी ऑफ द रेडियो एलिमेंट्स, इसको एक्टिविटी भी बोला जाता है रेडियो एलिमेंट्स की। If Tn is the number of nuclei that decay within the time interval delta t, तो अगर हमारे पास रिएक्शन स्टार्ट होने के बाद आधे घंटे बाद, एक घंटे बाद, एक हफ्ते बाद जितने नंबर ऑफ न्यूक्लियाई जो होते हैं वो बच जाते हैं या डिके हो जाते हैं उसमें अपने डाटा न्यूक्लियाइज के अंदर, तो उसको हम कहते हैं कि वो हमारे पास क्या है, Dn है। Then the rate of decay at any time is given by द रेट ऑफ डिके, जिसको हम एक्टिविटी भी बोलते हैं, उसको लिखा जाता है डेल्टा एन ओवर डेल्टा टी। तो डेल्टा एन जो है उस टाइम हमारे पास जो रिमेनिंग न्यूक्लियाई हैं वो है टोटल, अगर हमारे पास 100 थे तो उसमें से डिके होने के बाद जितने बच गए उस वक्त वो हमारे पास डेल्टा एन होंगे उस टाइम पर रिमेनिंग न्यूक्लियाई, विच इज माइनस साइन। वाई माइनस साइन इज रिक्वायर्ड? माइनस साइन हमने इसके साथ क्यों लगाया इस रेट के साथ? तो माइनस साइन हमने लगाया द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डिक्रीज विद द टाइम, क्योंकि पहले अगर हमने 100 न्यूक्लियाई लिए थे तो बाद में अगर उसमें से 60 निकल गए हैं, डिके हो गए हैं, तो बाकी कितने बच गए हैं, 40। तो इसका मतलब है कि न्यूक्लियाई जो होते हैं वो विद द टाइम डिक्रीज होते जा रहे होते हैं, इसीलिए ये माइनस साइन यहाँ पे लगाया जाता है। सो डेल्टा एन इज, इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में स्टडी करेंगे। इससे अगली स्लाइड में हम ज़रा मैथमेटिकल पोर्शन इसका देखते हैं कि कैसे हमने उसको सॉल्व किया है। तो फर्ज करें हमारे पास एक प्रोडक्ट ए है, यानी कि एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है ए, जो कि एक ए रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जो प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है। अब उसकी जो इनिशियल कंसंट्रेशन थी वो हम कहते हैं एन नॉट था, जब टाइम टी था, यानी कि जब डिसइंटीग्रेशन स्टार्ट नहीं हुई थी, डिके स्टार्ट नहीं हुआ था। फिर उसके बाद वो उस वक्त प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन भी ज़ीरो थी। फिर हम कहते हैं कुछ टाइम गुजर गया, टी इज इक्वल टू टी टाइम समथिंग, कोई टाइम हो गया, तो फिर क्या हुआ, फिर हमारे पास N1 न्यूक्लियाई उसमें से कम होकर डाटर न्यूक्लियाई में चेंज हो गए। जितने कम हुए वो कहाँ चले गए, वो डाटर न्यूक्लियाई में चेंज हो गए। तो इस तरह से N माइनस N1 इज इक्वल टू N। तो ये N वो है जो रिमेनिंग न्यूक्लियाई है, जैसा कि यहाँ पे आपको दिखाया गया है कि फ़र्ज़ करें हमारे पास 100 न्यूक्लियाई थे, उसमें से 40 जो है वो कम हो गए। तो 40 जो है वो किधर चले गए, वो डॉटर न्यूक्लियाई में चले गए, तो रिमेनिंग न्यूक्लियाई हमारे पास कितने रह गए, 60।
तो इसी चीज़ को लेके हमने उसका रेट ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट लिखना होता है, और फिर हम कहते हैं कि जो रेट है या डिके है या एक्टिविटी है दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रिमेनिंग न्यूक्लियाई। तो जितने रिमेनिंग न्यूक्लियाई होंगे उसी हिसाब से उसका जो रेट होगा वो उस पर डिपेंड करेगा। और इसको हम लिख सकते हैं कि rate of change of remaining nuclei with respect to time is directly proportional to the n। यहाँ पे एक चीज़ आपको बताई गई है कि रेट ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट की जो रेट है उसको हम माइनस में क्यों लिख रहे होते हैं। तो माइनस में लिखने की वजह पिछली स्लाइड में भी हमने पढ़ा है कि एक तो न्यूक्लियाइज जो होते हैं वो कम हो जाते हैं, और इसको हम कैसे मैथमेटिकली निकाल सकते हैं कि माइनस साइन हमारे पास आ जाए। तो माइनस साइन को अगर हम निकालते हैं तो यहाँ पे ये हमारे पास जो है वो फाइनल 40 हैं, और इन ओरिजिनल हमारे पास क्या थे, वो 0 थे प्रोडक्ट जो डाटा न्यूक्लियाई थे। उसको हमने अगर 60 पे डिवाइड अगर हम देखते हैं तो उसमें जो रिमेनिंग बचे हुए हैं वो क्या है, वो 60 हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम इसको देख रहे हैं कि हम माइनस साइन को कैसे यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। तो माइनस साइन को डिस्कस करने के लिए हम ये कहते हैं कि जी हमारे पास जो न्यूक्लियाई इनिशियली मौजूद थे वो 100 थे, उसमें से 40 जो है वो डाटा न्यूक्लियाई में चेंज हो गए, तो रिमेनिंग कितने हो गए हमारे पास 60। तो अब 60 जो है 60 हमारे पास फाइनल अमाउंट है, और इनिशियल अमाउंट हमारे पास क्या थी, 100 थी। तो अगर हम फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं तो जो न्यूक्लियाई हमारे पास चेंज हो गए हैं डाटा न्यूक्लियाई में वो 40 के साथ क्या आएगा, माइनस आएगा। इसीलिए हम यहाँ पे जो है वो माइनस लिख रहे होते हैं न्यूक्लियाई डिकेड। इतने न्यूक्लियाई जो है वो डिके हो गए माइनस का मतलब। तो यहाँ पे हम माइनस साइन इसकी अमाउंट के साथ लिख रहे होते हैं कि हमारे पास जो अमाउंट है वो कम हो गई है, और वो किस तरह से कम हुई है कि फाइनल अमाउंट हमारे पास ये रह गई है, जबकि इनिशियल अमाउंट हमारे पास 100 थी। तो 60 माइनस 100 विल बी इक्वल टू माइनस 40। तो ये माइनस जो है वो 40 के साथ अमाउंट के साथ लिखा जाता है। इस तरह हम फिर इस चीज़ को बता सकते हैं कि रेट जो होता है वो नेगेटिव में नहीं हो सकता। हम ये नहीं कह सकते कि कोई बाइक जो है वो -50 की वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, तो माइनस में तो नहीं कोई वेलोसिटी के साथ मूव कर सकती। तो यहाँ पे क्योंकि उसके अंदर नंबर ऑफ न्यूक्लियाइज जो होते हैं वो फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं तो वो कम हो जाते हैं, इसीलिए हमारे पास ये साइन जो है वो माइनस आता है। फिर हम इस इक्वेशन को आगे देखें तो ये यहाँ पे माइनस डेल्टा एन ओवर डेल्टा टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एन, और एन क्या है हमारे पास, न्यूक्लियाइड रिमेन्ड है। इस इक्वेशन को अगर हम यहाँ पे इक्वल लगाते हैं तो ये इक्वेशन आ जाती है माइनस डेल्टा एन ओवर डेल्टा टी इज इक्वल टू लेमडा एन। लेमडा एन इसमें क्या है, लेमडा इसमें है डिके कांस्टेंट या रेडियो एक्टिविटी डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट भी हम इसको बोल रहे होते हैं। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमने क्या करना होता है, इसको इंटीग्रेट करना होता है बोथ साइड पे। इंटीग्रेट करना है कि टोटल हमने देखना है कि कितने रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जो हैं वो चेंज हुए हैं अपने डाटा न्यूक्लियाई में। तो उसके लिए हम ये इक्वेशन लिखेंगे माइनस डेल्टा एन और डेल्टा टी, और इधर लेमडा एन, क्योंकि लेमडा जो होता है वो एक कांस्टेंट वैल्यू है, रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट है। और ये जो डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट होता है ये कंसंट्रेशन पे, टाइम पे, इनिशियल कंसंट्रेशन, टाइम, प्रेशर, टेम्परेचर की वैल्यू है वो डिफरेंट है। अगर हम यूरेनियम के लिए बोलेंगे तो वो डिफरेंट होगा, थोरियम के लिए डिफरेंट होगा। तो उस एलिमेंट के लिए ये सिर्फ उसी एलिमेंट की नेचर पे ही डिपेंड करता है। तो हम डिसइंटीग्रेट करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेशन करने के लिए हम जो है वो लेंगे कि लिमिट्स हैं। फ़र्ज़ करें हमारे पास लेमडा को हमने बाहर ले लिया है क्योंकि ये कांस्टेंट, और कांस्टेंट पे इंटीग्रेशन अप्लाई नहीं होता क्योंकि वो चेंज ही नहीं होता। जहाँ पे चेंज होता है वहाँ पे हमें इंटीग्रेशन को अप्लाई करना होता है। फ़र्ज़ करें हम टाइम टी ज़ीरो लेते हैं, तो टाइम टी ज़ीरो पे हमारे पास जो उसकी इनिशियल कंसंट्रेशन थी वो एन नॉट थी। जब हमने देखा कि अगर हम 100 लेते हैं तो यहाँ पे 100 थी। फिर कुछ टाइम गुजर गया, तो टाइम गुजरने के बाद फिर हमारे पास कितनी कंसंट्रेशन बची, वो हमारे पास बच गई एन। तो इस तरह से हमने इसको इंटीग्रेशन करते हुए इंटीग्रेट करना है।
जी तो स्टूडेंट, अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमने इसको कैसे इंटीग्रेट करना है। तो इंटीग्रेट करने के लिए हमने यहाँ पे लिमिट्स लगा दी हैं कि हमने इसको n नॉट से n के दरमियान और इसको हम t ज़ीरो से लेकर t टाइम के दरमियान इंटीग्रेट करना है। तो जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो इस माइनस साइन को हम इधर बाहर ले आते हैं और माइनस साइन को बाहर लाने के बाद हम इधर लिमिट्स वही लिखते हैं, डी एन और डी टी इज इक्वल टू लेमडा टी ज़ीरो टू टी इंटू एन। फिर हमने क्या किया है, यहाँ से n को हमने इधर डिवाइड कर दिया है और डेल्टा t को इधर हमने मल्टीप्लाई कर दिया है। ये इक्वेशन हमारे पास बन जाती है इंटीग्रेशन n नॉट टू n 1 ओवर n डेल्टा n इज इक्वल टू माइनस लेमडा इंटीग्रेशन डेल्टा t नॉट टू t। फिर हमने जब इसको सॉल्व करना है तो हमारे पास फार्मूला होता है कि अगर हम इसको ले रहे हैं यहाँ पे, इस फार्मूले को हमने जो सॉल्व करना होता है उसके लिए हमारे पास ये फार्मूला है कि अगर ऐसी इक्वेशन होती है 1 ओवर एक्स डेल्टा एक्स, तो उसका आंसर क्या आता है, लॉग एक्स। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, 1 ओवर एन डेल्टा एन, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, लॉग एन। तो इस चीज़ को हमने सॉल्व करना है। अगली इक्वेशन में हमने फिर यही देखा है कि 1 ओवर एन डेल्टा एन का आंसर आ जाता है लॉग एन, और लिमिट्स वैसे हैं एन नॉट टू एन इज इक्वल टू माइनस, इसको भी हमने सॉल्व करना है। तो फिर ये टी डेल्टा और ये इंटीग्रेशन इसके साथ कैंसिल हो जाते हैं और यहाँ पे टी इक्वल है टी नॉट तक। फिर हमने इसको जब सॉल्व करना है तो पहले हमने इसके अंदर अपर लिमिट को लिखना होता है। अगर यहाँ पे x होता तो हम यहाँ n की जगह पे log x लिख देते, माइनस लगा के यहाँ x नॉट होता तो माइनस log x नॉट लिख देते, क्योंकि यहाँ पे n है और n की जगह हमने अपर लिमिट पहले लिखनी है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे log n माइनस, फिर इस log n के साथ लोअर लिमिट लिखनी है, n की बजाय हमने n नॉट लिख देना है। तो log n माइनस log नेचुरल log n नॉट। इसी तरह यहाँ पे माइनस है और ये लैम्डा हम यहाँ पे लिखना भूल गए हैं, आप यहाँ पे लिख सकते हैं माइनस लैम्डा, फिर टी, टी की अपर लिमिट टी है, माइनस टी की लोअर लिमिट ज़ीरो है, तो टी की जगह पे हम ज़ीरो लगा देंगे। इस पूरे को जब हम सॉल्व करते हैं तो इक्वेशन हमारे पास आती है लॉग एन ओवर एन नॉट। ये हमारे पास लॉगरिथम की एक प्रॉपर्टी है कि दो चीज़ें जब दो लॉग आपस में माइनस हो रहे होते हैं तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, लॉग एन ओवर एन नॉट, और ये लॉग की बेस ई है। फिर इधर जो हमारे पास सॉल्व हुआ है वो यहाँ पे लेमडा था, माइनस लेमडा टी, माइनस टी लेमडा लिख दिया हमने इसको। फिर अगर हमारे पास इस तरह की एक इक्वेशन होती है कि जिसमें लॉग ए बेस के साथ बी के इक्वल हो और वो इक्वल हो सी के, तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि बी विल बी इक्वल टू ए रेज टू पावर सी। तो बी वैसे ही रहता है और यहाँ पे जो बेस है वो इधर आके जो हमारे पास राइट साइड वाला आंसर होता है वो उस बेस की पावर बन जाता है। तो इसी तरह से ये फर्ज करें हमारे पास बी है, तो ये ई है, यहाँ पे बेस है नेचुरल लॉग की, तो ये ई इधर आ जाएगा और ये जो हमारे पास सी है ये उसकी पावर बन जाएगा। तो इक्वेशन हमारे पास लॉग एंटी लॉग अगर हम इसको लेते हैं तो क्या ये हमारे पास सॉल्व होता है, तो सॉल्व होने में ये आ जाता है एन ओवर एन नॉट, जो यहाँ पे ये बी था, और ये ई राइट साइड पे आ गया, और जो यहाँ पे ये सी था माइनस लैम्डा टी, तो ये इसकी पावर बन गया। तो इस तरह से ये इक्वेशन हमने सॉल्व की, और सॉल्व करने के बाद फिर हम इसको ले आते हैं इस फॉर्म के अंदर कि n इधर लिख देते हैं, n नॉट को राइट साइड पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इक्वेशन आ जाती है n इज इक्वल टू एन नॉट माइनस ई लैम्डा टी। जी तो स्टूडेंट, अभी हमने ये इक्वेशन लिखी थी जिसमें हमने कहा था n इज इक्वल टू एन नॉट ई रेज पावर माइनस लैम्डा टी। ये हमारे पास एक एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है। इस एक्सपोनेंशियल इक्वेशन में अगर हम देखें तो ये n क्या है, हमारे पास y एक्सिस है, n नॉट जो है वो इंटरसेप्ट है जो यहाँ पे हम देख रहे हैं, और e रेज टू पावर माइनस लैम्डा, माइनस लैम्डा इसमें क्या है, वो m है, मतलब स्लोप है, जो हम स्ट्रेट लाइन इक्वेशन में लिखते हैं y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो उसमें c इंटरसेप्ट होता है और m क्या होता है, वो स्लोप होता है, x जो होता है वो उसमें x एक्सिस की वैल्यू है। तो यहाँ पे e रेज टू पावर माइनस m इज द स्लोप of this graph which is going down, so minus sign indicate that the slope is decreasing। और आगे हम देख रहे हैं कि t is taken on x axis
विच इज़ टाइम। तो यहाँ पे इसको जब हम इस इक्वेशन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं तो कुछ इस तरह का हमारे पास ग्राफ आता है कि इनिशियली जब टाइम जो टी जो ज़ीरो था उस वक्त हमारे पास जो उसकी इनिशियल कंसंट्रेशन थी वो एन नॉट थी, और जैसे जैसे हम इसको फिर टाइम को आगे जाते हैं, मूव करते हैं, इधर से इधर मूव करेंगे, तो इस टाइम पे अगर हम देखें तो फिर हमारे पास कंसंट्रेशन भी उसकी एन रह जाएगी। तो टोटल हमारे पास जो है वो अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं तो ये नीचे की तरफ हमारे पास एक स्लोप आ रहा है, और इस स्लोप को हम देखें तो यहाँ पे जाके ये पैरेलल हो जाता है एक्स एक्सिस के। तो पैरेलल जब ये एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाता है तो दो चीज़ें जब पैरेलल होती हैं आपस में एक दूसरे के, तो वो एक दूसरे के साथ मैच नहीं करती। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो रेट ऑफ डिके है वो तो कम हो रहा है, लेकिन यहाँ पे आके वो पैरेलल हो जाता है और एक्स एक्सिस को कहीं पे मीट नहीं करता। तो एक्स एक्सिस को अगर ये मीट नहीं करेगा तो इसका मतलब है कि नंबर ऑफ न्यूक्लियाई हमारे पास, ये वाई एक्सिस भी क्योंकि हमने नंबर ऑफ न्यूक्लियाई लिए हैं जो कि रेडियो एक्टिव एंड डिसइंटीग्रेट हो रहे हैं, वो जब एक्स एक्सिस को टच नहीं करेंगे तो वाई की वैल्यू ज़ीरो नहीं होगी। तो इसका मतलब है एन कभी भी ज़ीरो नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि ये रिएक्शन हमेशा कंटिन्यू रहते हैं, रेडियो एक्टिव जो डिके होता है वो कंटिन्यू रहता है, सदियों तक चलता रहता है और ये एंड नहीं होता। और इस तरह के जो रिएक्शन जिसके अंदर जो है वो स्लोप जो है वो आगे पैरेलल हो जाता है आगे एक्स एक्सिस के, तो इन रिएक्शंस को हम कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। जो जितने भी डिसइंटीग्रेशन रिएक्शंस हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के डिके रिएक्शंस हैं, वो सारे के सारे क्या होते हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होते हैं। तो इस तरह से हम इस ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है नेवर अंडरगो कंप्लीशन। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो होंगे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के वो कभी कंप्लीट नहीं होते, उनमें रेडियो एक्टिविटी कंटिन्यू रहती है, सालों तक वो रिएक्शन जो होते हैं वो चलते रहते हैं। चलें अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। जी तो स्टूडेंट, जो इक्वेशन हमने पहले पढ़ी है वो एक एक्सपोनेंशियल इक्वेशन थी। अब हम उस इक्वेशन को चेंज करने जा रहे हैं अपने स्ट्रेट लाइन इक्वेशन के अंदर। जब हमने इंटीग्रेशन किया था, सॉल्व किया था, तो उसके बाद हमारे पास एक इक्वेशन आई थी log n ओवर एन नॉट इज इक्वल टू माइनस लैम्डा टी। तो हमें पता है कि हम इस फॉर्म को पहले इस फॉर्म से इस फॉर्म में लेके गए थे, अगर हम इस फॉर्म को दोबारा से उस फॉर्म में लेके आए जो कि लॉगरिथम का रूल है कि log m ओवर n इक्वल होता है log m माइनस log n, यानी कि पहली वैल्यू ऊपर वाली वैल्यूज को इधर लिखते हैं, नीचे वाली वैल्यू को माइनस करके लिखते हैं, तो log n माइनस log n नॉट विल बी इक्वल टू माइनस लैम्डा टी। और इसमें से अगर हम माइनस कॉमन ये वाला माइनस जो है वो इस साइड पे ले आते हैं तो ये इक्वेशन हमारे पास आ जाती है माइनस log n माइनस log n नॉट इज इक्वल टू लैम्डा टी। फिर इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये n नॉट प्लस में आ जाएगा और n माइनस में आ जाएगा, तो log n नॉट माइनस log n इज इक्वल टू लैम्डा टी। इसमें से ये इक्वेशन हमने ड्राइव की है। अब अगर हम यहाँ से लैम्डा की वैल्यू को फाइंड आउट करना चाहते हैं या इस इक्वेशन को दोबारा हम इस फॉर्म में ले आते हैं, तो इस फॉर्म में जब हम लाते हैं तो यहाँ से सिर्फ क्या हुआ, माइनस जब खत्म हुआ है तो एन नॉट ऊपर चला गया और एन नीचे आ गया है, तो ये इक्वेशन हमारे साथ इस फॉर्म में आ गई है कि log एन नॉट और एन इज इक्वल टू लैम्डा टी। तो यहाँ से हमने स्लोप को नेगेटिव से पॉजिटिव में चेंज कर दिया है। अब यहाँ पे इसमें से अगर हम लैम्डा की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं जो कि डीके कांस्टेंट है, तो लैम्डा की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लैम्डा को सेपरेट कर लेंगे और टी को उधर डिवाइड कर देंगे, तो लैम्डा इज इक्वल टू वन ओवर टी लॉग एन नॉट ओवर एन। और इस नेचुरल लॉग को अगर हम सिंपल लॉग में चेंज करना चाहते हैं तो फिर हम क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 2.303 लॉग टू द बेस 10। तो 2.303 ओवर टी इंटू लॉग टू द बेस 10 एन नॉट ओवर एन। एन क्या है हमारे पास, इनिशियल कंसंट्रेशन है, एन नॉट सॉरी इनिशियल कंसंट्रेशन है, और एन क्या है, अमाउंट। स्लाइड पे आते हैं तो इस इक्वेशन को हम फिर आगे सॉल्व करते हैं। तो log n नॉट माइनस log n इज इक्वल टू लैम्डा टी। और ये चीज़ हमने देखी है कि हमने इसको सॉल्व किया था तो लैम्डा इज इक्वल टू 2.303 ओवर टी आया था log n नॉट और n के।
और अगर हम यहाँ से इसको दोबारा से इस लॉग को इस लॉग में चेंज करना चाहें तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि ये 2.303 लॉग ख़त्म होकर नेचुरल लॉग लिख देते हैं और ये इक्वेशन हमारे पास आ जाती है। अब इस इक्वेशन को हमने स्ट्रेट लाइन इक्वेशन में जो चेंज किया है उसके मुताबिक जो इक्वेशन हमारे पास आई थी 2.303 log n नॉट माइनस log n इज इक्वल टू लेमडा टी। यहाँ पे इस 2.303 को हमने क्या किया, राइट साइड पे ले गए हैं। ये कहाँ से लेके आए हैं इक्वेशन, ये इक्वेशन हम यहाँ से लेके आए हैं कि ये जो इक्वेशन थी इस इक्वेशन में यहाँ पे हमने फाइंड आउट किया था कि 2.303 log n माइनस log n इज इक्वल टू लेमडा टी। 2.303 log बेस 10 n नॉट माइनस log 10 n इज इक्वल टू लेमडा टी। तो हमने क्या किया है कि 2.303 को हमने इधर डिवाइड कर दिया है राइट साइड पे, यहाँ पे। तो राइट साइड पे जब हमने इसको डिवाइड किया तो ये इक्वेशन हमारे पास बन गई log to the base 10 n naught minus log 10 n is equal to lambda 2.303 lambda over 2.303 into t। अब ये हमारे पास आ गया है एक इक्वेशन, इसमें से हमने n नॉट को इधर रखा है और इसको हम ले गए हैं राइट साइड पे। तो ये माइनस यहाँ जाके क्या हो गया, प्लस हो गया। तो अब ये इक्वेशन बन गई है log बेस 10 n नॉट इज इक्वल टू लैम्डा ओवर 2.303 इंटू टी प्लस log 10 n। तो ये एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है जिसमें ये हमारे पास y एक्सिस की वैल्यू है, y इज इक्वल टू एम एक्स। एम क्या होता है, स्लोप होता है उस लाइन का, और लैम्डा वो स्लोप किसके इक्वल होगा, लैम्डा और 2.303। एक्स टी मतलब एक्स एक्सिस की वैल्यू है हमने, यानी कि टाइम को एक्स एक्सिस पे लेना है। log 10 जो है एन नॉट को वाई एक्सिस पे लेना है। और ये जो है हमारे पास log 10 एन, ये क्या है, सी है। सी का मतलब इंटरसेप्ट, जहाँ पे ये लाइन इसको कट करेगी तो वो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो वैल्यूज आएंगी, ये फाइनल है ये इनिशियल है, तो फाइनल में से जो इनिशियल हम वैल्यू माइनस करेंगे तो वो जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास log 10 n आएगी। और जब हमने स्टार्ट किया था तो वो हमारे पास आ गई थी वैल्यू उसकी log n की वैल्यू। वाई एक्सिस पे हमने log n नॉट लेना है। और फिर हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो यहाँ से स्लोप कैसे निकालेंगे, तो स्लोप क्या होगा, जो हमने यहाँ पे लिखा है लैम्डा और 2.303 m। तो ये स्लोप वाई एक्सिस ओवर एक्स एक्सिस जो होता है वो स्लोप होता है। वाई एक्सिस की वैल्यूज़ यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक की जो वैल्यूज़ हैं वो वाई एक्सिस की आ जाएंगी इस ट्रायंगल में, और यहाँ से लेके यहाँ तक की जो वैल्यूज़ हैं फाइनल माइनस इनिशियल एक्स एक्सिस की वैल्यू ले लेंगे। तो यहाँ पे वाई की वैल्यूज़ को एक्स एक्सिस की वैल्यू पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास स्लोप आएगा, और स्लोप क्या होगा, लैम्डा ओवर 2.303। और अगर आपको लैम्डा की वैल्यू पता है डिके कांस्टेंट की उस रेडियो एक्टिव एलिमेंट के लिए, तो उस वैल्यू को आप 2.303 पे डिवाइड करते हुए भी स्लोप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमने इस इक्वेशन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया है जिसमें हमने वाई एक्सिस पे log टू द बेस 10 एन नॉट को लिया है और एक्स एक्सिस पे हमने टाइम को लिया है। और इसमें फिर हमने जहाँ भी ये स्लोप, जहाँ भी ये लाइन इंटरसेप्ट कर रही है वाई एक्सिस को, तो ये है उसका जो ये वाली वैल्यू है सी वैल्यू log 10 एन। आगे फिर हम इसी चीज़ को देख रहे हैं इस इक्वेशन के अंदर। जी स्टूडेंट, इस स्लाइड में आपको ये बताया गया है कि अगर हम इस इक्वेशन को यहाँ पे माइनस में ही रखते हैं तो इसका मतलब है कि हम इधर भी माइनस से मल्टीप्लाई करें, इधर भी माइनस से मल्टीप्लाई करें, तो जो ओरिजिनल इक्वेशन हमारे पास आई थी वो यही थी शुरू शुरू में। तो वही होती log 10 n माइनस log 10 n नॉट इज इक्वल टू माइनस लेमडा 2.303। तो फिर इसमें हमें जो ग्राफ मिलेगा वो थोड़ा डिफरेंट होगा क्योंकि इसमें स्लोप जो है वो नेगेटिव में है। स्लोप नेगेटिव में है इसका मतलब जब हमने इसको यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई किया था तो ये माइनस हो गया था और ये प्लस हो गया, तो ये प्लस यहाँ आ गया, माइनस वाला यहाँ पे आ गया। तो इस चीज़ को हम देख रहे हैं। तो यहाँ पे जो इक्वेशन बनती है तो फिर इस इक्वेशन के अंदर हम क्या कर रहे हैं, जो हमारे पास माइनस वाला है उसको हम इधर ले गए हैं, तो माइनस इधर आया तो हमारे पास ये अब इंटरसेप्ट हो गया है। और ये हमारे पास क्या है, वाई एक्सिस की वैल्यू है, यानी कि वाई एक्सिस पे हम log n लेंगे इररेस्पेक्टिव टू द log n नॉट जो हमने प्रीवियस ग्राफ में लिया था। अब यहाँ पे हमने log n की वैल्यू को वाई एक्सिस पे लेना है -2.303
माइनस लेमडा और 2.303 ये स्लोप है, ये टी जो है टाइम एक्स एक्सिस की वैल्यू है, और ये हमारे पास इंटरसेप्ट है। तो अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि लेमडा के साथ माइनस आ रहा है, तो इसका मतलब है कि जो स्लोप है वो हमारे पास क्या होगा, वो डाउनवर्ड होगा, माइनस में होगा। जो पिछला ग्राफ था उसमें स्लोप अपवर्ड था, मूव कर रही थी लाइन ऊपर की तरफ, जब यहाँ पे लेमडा प्लस था। इस इक्वेशन के अंदर क्योंकि लेमडा माइनस में है तो स्लोप जो होगा वो डाउनवर्ड होगा। इस चीज़ को हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये इक्वेशन को जब हमने यहाँ पे ड्राइव किया है तो जो स्लोप हमारे पास आया है, एक्स एक्सिस पे हमने टाइम लिया है, वाई एक्सिस पे हमने लॉग टू द बेस 10 एन लिया है, और ये जो है ये इंटरसेप्ट है, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो वैल्यू हमने निकाल लेनी है फाइनल माइनस इनिशियल, ये इंटरसेप्ट की वैल्यू आ जाएगी। और इसका स्लोप माइनस लेमडा और 2.303 है, जो यहाँ से हम इसको निकाल सकते हैं। तो इस तरह से जैसे जैसे इक्वेशन चेंज होती है वैसे वैसे हमारे पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी चेंज हो जाती है। नेक्स्ट स्लाइड में हमने देखना है कि व्हाट इज हाफ लाइफ। हाफ लाइफ क्या होती है? तो हाफ लाइफ ये होती है कि जब हम कोई भी रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई की बात करते हैं, उसकी इनिशियल कंसंट्रेशन जितनी होती है, तो जब वो उसमें से हाफ ऑफ इट्स इनिशियल कंसंट्रेशन इज कन्वर्टेड इनटू इट्स डॉटर न्यूक्लियाई, देन द रिमेनिंग अमाउंट जो बच जाती है, और जितना टाइम उसको लगता है उस अमाउंट को चेंज होने में अपने डॉटर न्यूक्लियाई में, यानी कि उसकी अगर हमारे पास 100 न्यूक्लियाई थे तो 100 में से अगर 50 न्यूक्लियाई जो है वो चेंज हुए हैं 50 मिनट में, तो इसका मतलब है कि उसकी हाफ लाइफ 50 मिनट है। 50 मिनट का मतलब है 50 मिनट में वो आधा रह गया है। तो जितनी देर में कोई भी रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई अपनी हाफ अमाउंट जो है वो चेंज कर देता है डाटा न्यूक्लियाई में, उस टाइम को हम उसकी हाफ लाइफ बोलते हैं। तो हाफ लाइफ जो है उसको T50 या T.5 या T जो है वो हाफ, इससे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो जो इक्वेशन हमारे पास आई थी सॉल्व करके, रेट ऑफ डिके ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई, उसके हिसाब से हमने जब लेमडा की वैल्यू निकाली थी तो वो थी हमारे पास लेमडा इज इक्वल टू 2.303 ओवर टी लॉग एन नॉट ओवर एन। अब इसमें से हमने क्योंकि टाइम को लेना है, टाइम को टी हाफ लेना है, तो टी हाफ, टी को बजाय हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, टी हाफ लिख देंगे। और एन उस वक्त क्या होगा, उसकी जो रिमेनिंग अमाउंट होगी वो उसकी इनिशियल का हाफ होगी, तो इसलिए एन की जगह पे हमने क्या लिख देना है, एन नॉट ओवर टू। तो इस इक्वेशन के अंदर हम टी की वैल्यू को पुट करेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे हमने वैल्यू को पुट करना है एन नॉट ओवर टू। लेमडा इज इक्वल टू 2.303 ओवर टी हाफ into log n naught over n naught by 2। तो n naught और n naught by 2 ये इक्वेशन जब हमारे पास आती है तो फिर लैम्डा जो है वो किसके इक्वल आ जाता है, 2.303 ओवर टी हाफ लॉग, यहाँ पे 2 ऊपर चला जाएगा, n से n naught कम कैंसिल हो गया, तो log 2 आ गया। अब टी हाफ जो है वो इसको इधर ले आए, लैम्डा को इधर ले जाए, तो फिर टी हाफ विल बी इक्वल टू 2.303 log 2 ओवर लैम्डा। जब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं और लेमडा से डिवाइड करते हैं तो टी हाफ हमारे पास यानी कि हाफ लाइफ का फार्मूला आता है 0.693 ओवर लेमडा। 0.693 ओवर लेमडा जो है ये हमारे पास एक इक्वेशन होती है जो हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की हाफ लाइफ निकालने के लिए यूज़ करते हैं। इसका मतलब है कि अगर हमारे पास डिके कांस्टेंट की वैल्यू मौजूद है उस न्यूक्लियाइड के लिए, तो उस न्यूक्लियाई के लिए तो हम इस 0.693 को उस डिके कांस्टेंट की वैल्यू से डिवाइड करते हुए हम टी हाफ निकाल सकते हैं, या फिर अगर हमें उसकी हाफ लाइफ पता है तो हम उसकी जो है वो डिके कांस्टेंट की वैल्यू को भी कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस इक्वेशन। तो यहाँ पे इस ग्राफ में आपको बताया गया है कि जी टी हाफ जो होती है वो नंबर ऑफ एटम्स हमने इनिशियल कंसंट्रेशन जो है इधर लेनी है। तो टी हाफ जो होती है वो पैरेलल होती है, पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, यानी कि टाइम के हिसाब से उसकी हाफ लाइफ में कोई चेंज नहीं आ रहा, कांस्टेंट वैल्यू आ रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास इनिशियल कंसंट्रेशन में 100 न्यूक्लियाई थे तो 100 में से 50 अगर डाटा न्यूक्लियाई में चेंज हो गए तो बाकी 50 बच गए। तो 50 जो चेंज हुए हैं या जितनी देर 50 तक आने में लगी है, हाफ होने में लगी है, वो अगर 25 मिनट लगे हैं तो यहाँ पे 25 मिनट पे उसकी जो 50 रह गए हैं।
तो 50 का मतलब है कि हाफ लाइफ हमारे पास उसकी जो है वो 25 मिनट है। बाई जो है नंबर ऑफ एटम जो रिमेनिंग इनिशियल थे उसके हिसाब से जब हम देखते हैं, तो जब हमारे पास 100 थे तब भी उसकी हाफ लाइफ उस वक्त कितना टाइम लगा उसको, 25 मिनट। जब वो 50 रह गए तब भी उसको कितना टाइम लगेगा, 50 से जो है वो उसके आधा रहने में फिर भी उसको 25 मिनट लगते हैं। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे हाफ लाइफ उसकी कांस्टेंट रहती है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, क्योंकि यहाँ पे हाफ लाइफ के अंदर कोई भी कंसंट्रेशन की जो है वो हमारे पास वैल्यू नहीं है, यानी कि किसी भी इनिशियल कंसंट्रेशन पे ये डिपेंड नहीं करती हाफ लाइफ। इनिशियल कंसंट्रेशन चाहे 100 है, चाहे वो रिएक्शन फिर बाद में कम हो गई है, तो कंसंट्रेशन पे कहीं पे भी हाफ लाइफ डिपेंड नहीं कर रही। इसीलिए हम कहते हैं कि अगर हमारे पास न्यूक्लियाइड 100 से 50 होने में उसको फर्स्ट हाफ लाइफ 25 मिनट लगे हैं, तो 50 से उसको 25 होने में भी यहाँ पे जीरो नहीं होगा, बल्कि 50 से वो क्या होगा, 25 अगर होंगे तो भी उसको 25 मिनट लगेंगे। फिर ये 25 मिनट क्या है, ये हमारे पास वाई एक्सिस की वैल्यू है, और ये नंबर ऑफ एटम्स हैं जो 100 थे तो भी हमारे पास 25 मिनट आई वैल्यू, 50 होने तक, फिर 50 से 25 होने के लिए वाई एक्सिस की वैल्यू फिर हमारे पास 25 ही आई, फिर 25 से 12.5 होने के लिए भी वाई एक्सिस की वैल्यू 25 ही आई। इसका मतलब है कि हाफ लाइफ जो होती है वो पैरेलल टू द एक्स एक्सिस होती है फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एंड फॉर द रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स डिसइंटीग्रेशन के लिए जो उसकी हाफ लाइफ होगी वो हमेशा कांस्टेंट रहती है। तो इस ग्राफ से हम इसकी हाफ लाइफ के बारे में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो बाकी रिमेनिंग स्लाइड्स हैं उनमें वही चीज़ें यहाँ पे एक्सप्लेन की गई हैं जो हमने बोर्ड पे उनको लिखा है और उन्हें को ड्राइव किया इक्वेशंस को, और आगे उनको जो है वो सॉल्व करते गए हैं और उनके हिसाब से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमने बताई है। तो यहाँ पे वही सारी चीज़ें जो है मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हैं, इन मैथमेटिकल कैलकुलेशंस को आप करेंगे तो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। आगे इसमें यहाँ पे बताया हुआ है कि वो जो है वो एक्टिविटी क्या होती है, तो एक्टिविटी हमने अभी पढ़ ली थी। तो हमने ये राइट साइड वाला जो पोर्शन है इसको देखना है, क्योंकि ये जो है हम प्रीवियस लेक्चर में हम देख चुके हैं कि हम जो है वो डिसइंटीग्रेशन पर न्यूक्लियॉन्स कैसे निकाल सकते हैं। तो ये वो वाली स्लाइड का हिस्सा है, जबकि अब हम फोकस कर रहे हैं अपने राइट साइड वाली स्लाइड के ऊपर, कि हम यहाँ पे जो फोकस कर रहे हैं वो हम किस चीज़ पे फोकस कर रहे हैं, वो हम फोकस कर रहे हैं अपने इस पार्ट के ऊपर, जो इसकी राइट साइड पे जो पार्ट है इस पे हम फोकस कर रहे हैं। तो इन चीज़ों को हमने यहाँ पे आपने देखना है कि ये क्या है। तो इस तरह से नेक्स्ट स्लाइड में जब हम मूव करते हैं अपनी, तो रेडियो एक्टिव डिके के बारे में बताया गया है, एक्टिविटी के बारे में बताया गया है, और उस तरह से इस इक्वेशंस को वैसे ही सॉल्व किया गया है कि ये डेल्टा एन ओवर डेल्टा टी रेट ऑफ डिके ऑफ द रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जो होती हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उसकी रिमेनिंग अमाउंट के। और फिर जहाँ पे हम देख रहे हैं कि इसको माइनस साइन से हम रिप्रेजेंट करते हैं, और वो भी हमने पिछली स्लाइड में देख लिया था कि ये माइनस यहाँ पे क्यों आ रहा होता है। तो इस तरह से हम इसकी डिके कांस्टेंट जो है वो लैम्डा की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं, और लैम्डा की वैल्यू किसके इक्वल होती है, डेल्टा एन ओवर डेल्टा टी इंटू 1 ओवर डेल्टा टी। ये सारी चीज़ें हमने उसमें देखी हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हमने फिर एक्सप्रेशन फॉर द डिके कांस्टेंट को सॉल्व आउट किया है, और सॉल्व आउट करने के बाद ये इक्वेशन हमारे पास आएगी थी लॉग एन ओवर लॉग एन इज इक्वल टू माइनस लेमडा टी प्लस सी, जो कि स्ट्रेट लाइन इक्वेशन थी। इस स्ट्रेट लाइन इक्वेशंस को हमने, इसको भी आपने राइट साइड पे ही जो है वो कंटिन्यू रखना है स्लाइड्स को, जो यहाँ से हम इसको बता सकते हैं कि आपने ये वाला जो पोर्शन है इसका इसी साइड पे ही आपने ज़्यादा ध्यान देना है यहाँ पे ही, और इस चीज़ को हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं। अगर नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं तो नेक्स्ट स्लाइड में वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जिसमें हमें एक इक्वेशन हमने ड्राइव की थी जो कि एक्सपोनेंशियल इक्वेशन थी, और उस एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस के हिसाब से हमने फिर एक ग्राफ बनाया था। ये वो वाला ग्राफ है जो हमने बाद में बताया था, जिसमें हमारे पास जो इक्वेशन आई थी और ये थी कि जिसमें लेमडा जो है वो माइनस में आ रहा होता है, लेमडा टी। तो इस हिसाब से जो स्लोप होगा वो माइनस होगा,
और यहाँ पे इंटरसेप्ट हमारे पास जो होगा वो लॉग एन नॉट होगा और लॉग एन जो है वो वाई एक्सिस पे हम इसको लेंगे। तो ये एक स्ट्रेट लाइन इस तरह से ऑब्टेन होती है और ये एक्सपोनेंशियल ग्राफ है जब हमने उसको ई रेज्ड पावर माइनस लेमडा टी के हिसाब से ड्राइव किया था। तो यहाँ पे ये जो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है इसकी। और इसी तरह से फिर हम ये सारी की सारी इक्वेशंस हमने सॉल्व की हैं और कैसे हमने जो है वो 2.303 को डाला, इधर लॉग जो है हमारे पास 2 आया, फिर लॉग 2 के साथ हमने जो है उसकी वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद लॉग 2 की वैल्यू ये आती है। तो इसको जब हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो 0.693 ओवर टी हाफ आ गया था। तो 0.693 ओवर टी हाफ यानी कि टी हाफ उसकी हाफ लाइफ के बारे में है। अगर हमने लैम्डा लेना है तो 0.693 ओवर टी हाफ करेंगे। अगर हमें हाफ लाइफ पता है तो हम डीके कांस्टेंट मालूम कर लेंगे, और अगर हमें हाफ लाइफ नहीं पता और डीके कांस्टेंट पता है तो हम इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लिख के उसकी हाफ लाइफ इस वैल्यू से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ग्राफिकल जाने के बजाय हम यहाँ पे 0.693 को डिवाइड कर दें लैम्डा की वैल्यू से तो भी हमें उसकी हाफ लाइफ का पता चल जाता है। तो यहाँ पे नेक्स्ट आपको बताया हुआ कि जस्ट थिंक, डज हाफ लाइफ इंक्रीज डिक्रीज आर रिमेन कांस्टेंट। तो वो हमने पढ़ लिया था कि जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस होते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के, जो डिसइंटीग्रेशन रिएक्शंस होते हैं, उनके अंदर हाफ लाइफ जो होती है वो कांस्टेंट रहती है, वो चेंज नहीं होती। वो हमने देखा था, कहाँ पे देखा था, वो हमने इस स्लाइड में देखा था कि हाफ लाइफ जो होती है वो इनिशियल कंसंट्रेशन अगर चेंज हो भी रही है, 100 से 50 पे आ गई, 50 से 25 पे आ गई, 25 से 12.5 पे आ गई, तो भी टी हाफ की वैल्यू वही है, हाफ लाइफ चेंज नहीं होती, वो कांस्टेंट रहती है। तो इस चीज़ को एंड पे जो है वो एक्सप्लेन किया गया है। उम्मीद है आपको ये लेक्चर्स बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। इसमें फिर भी अगर कोई चीज़ आपको समझ ना आई हो तो आप मज़ीद क्वेश्चन कर सकते हैं। ये वीडियो मेरी यूट्यूब पे भी मौजूद होगी, आप वहाँ पे कमेंट में भी पूछ सकते हैं। अगर कोई पूछना चाहें तो आपको वहाँ पे भी एक्सप्लेन किया जाएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, और उसके बाद हम फिर अपने नेक्स्ट लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू वेरी मच। द बेस 10 एन लिया है और ये जो है ये इंटरसेप्ट है, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो वैल्यू हमने निकाल लेनी है फाइनल माइनस इनिशियल, ये इंटरसेप्ट की वैल्यू आ जाएगी। और इसका स्लोप माइनस लेमडा और 2.303 है, जो यहाँ से हम इसको निकाल सकते हैं। तो इस तरह से जैसे जैसे इक्वेशन चेंज होती है वैसे वैसे हमारे पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी हमें देखना है कि व्हाट इज़ हाफ लाइफ। हाफ लाइफ क्या होती है? तो हाफ लाइफ ये होती है कि जब हम कोई भी रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई की बात करते हैं, उसकी इनिशियल कंसंट्रेशन जितनी होती है, तो जब वो उसमें से हाफ ऑफ इट्स इनिशियल कंसंट्रेशन इज कन्वर्टेड इनटू इट्स डॉटर न्यूक्लियाई, देन द रिमेनिंग अमाउंट जो बच जाती है, और जितना टाइम उसको लगता है उस अमाउंट को चेंज होने में अपने डॉटर न्यूक्लियाई में, यानी कि उसकी अगर हमारे पास 100 न्यूक्लियाई थे तो 100 में से अगर 50 न्यूक्लियाई जो है वो चेंज हुए हैं 50 मिनट में, तो इसका मतलब है कि उसकी हाफ लाइफ 50 मिनट है। 50 मिनट का मतलब है 50 मिनट में वो आधा रह गया है। तो जितनी देर में कोई भी रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई अपनी हाफ अमाउंट जो है वो चेंज कर देता है डाटर न्यूक्लियाई में, उस टाइम को हम उसकी हाफ लाइफ बोलते हैं। तो हाफ लाइफ जो है उसको T50 या T.5 या T जो है वो हाफ, इससे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो जो इक्वेशन हमारे पास आई थी सॉल्व करके, रेट ऑफ डिके ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई, उसके हिसाब से हमने जब लेमडा की वैल्यू निकाली थी तो वो थी हमारे पास लेमडा इज इक्वल टू 2.303 ओवर टी लॉग एन नॉट ओवर एन। अब इसमें से हमने क्योंकि टाइम को लेना है, टाइम को टी हाफ लेना है, तो टी हाफ, टी को बजाय हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, टी हाफ लिख देंगे। और एन उस वक्त क्या होगा, उसकी जो रिमेनिंग अमाउंट होगी वो उसकी इनिशियल का हाफ होगी, तो इसलिए एन की जगह पे हमने क्या लिख देना है, एन नॉट ओवर टू। तो इस इक्वेशन के अंदर हम टी की वैल्यू को पुट करेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे हमने वैल्यू को पुट करना है एन नॉट और टू। लैम्डा इज इक्वल टू 2.303 ओवर टी हाफ इंटू लॉग एन नॉट ओवर एन नॉट बाई टू। तो एन नॉट और एन नॉट बाई टू, ये इक्वेशन जब हमारे पास आती है
तो फिर लैम्डा जो है वो किसके इक्वल आ जाता है, 2.303 ओवर टी हाफ लॉग, यहाँ पे 2 ऊपर चला जाएगा, एन से एन नॉट कम कैंसिल हो गया, तो लॉग 2 आ गया। अब टी हाफ जो है वो इसको इधर ले आए, लैम्डा को इधर ले जाए, तो फिर टी हाफ विल बी इक्वल टू 2.303 लॉग 2 ओवर लैम्डा। जब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं और लैम्डा से डिवाइड करते हैं तो टी हाफ हमारे पास यानी कि हाफ लाइफ का फार्मूला आता है 0.693 ओवर लैम्डा। 0.693 ओवर लैम्डा जो है ये हमारे पास एक इक्वेशन होती है जो हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की हाफ लाइफ निकालने के लिए यूज़ करते हैं। इसका मतलब है कि अगर हमारे पास डिके कांस्टेंट की वैल्यू मौजूद है उस न्यूक्लियाइड के लिए, तो उस न्यूक्लियाई के लिए तो हम इस 0.693 को उस डिके कांस्टेंट की वैल्यू से डिवाइड करते हुए हम टी हाफ निकाल सकते हैं, या फिर अगर हमें उसकी हाफ लाइफ पता है तो हम उसकी जो है वो डिके कांस्टेंट की वैल्यू को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस ग्राफ में आपको बताया गया है कि जी टी हाफ जो होती है वो नंबर ऑफ एटम्स हमने इनिशियल कंसंट्रेशन जो है इधर लेनी है, तो टी हाफ जो होती है वो पैरेलल होती है, पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, यानी कि टाइम के हिसाब से उसकी हाफ लाइफ में कोई चेंज नहीं आ रहा, कांस्टेंट वैल्यू आ रहा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास इनिशियल कंसंट्रेशन में 100 न्यूक्लियाई थे तो 100 में से 50 अगर डाटा न्यूक्लियाई में चेंज हो गए तो बाकी 50 बच गए। तो 50 जो चेंज हुए हैं या जितनी देर 50 तक आने में लगी है, हाफ होने में लगी है, वो अगर 25 मिनट लगे हैं तो यहाँ पे 25 मिनट पे उसकी जो 50 रह गए हैं, तो 50 का मतलब है कि हाफ लाइफ हमारे पास उसकी जो है वो 25 मिनट है। बाई जो है नंबर ऑफ एटम जो रिमेनिंग इनिशियल थे उसके हिसाब से जब हम देखते हैं, तो जब हमारे पास 100 थे तब भी उसकी हाफ लाइफ उस वक्त कितना टाइम लगा उसको, 25 मिनट। जब वो 50 रह गए तब भी उसको कितना टाइम लगेगा, 50 से जो है वो उसके आधा रहने में फिर भी उसको 25 मिनट लगते हैं। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे हाफ लाइफ उसकी कांस्टेंट रहती है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, क्योंकि यहाँ पे हाफ लाइफ के अंदर कोई भी कंसंट्रेशन की जो है वो हमारे पास वैल्यू नहीं है, यानी कि किसी भी इनिशियल कंसंट्रेशन पे ये डिपेंड नहीं करती हाफ लाइफ। इनिशियल कंसंट्रेशन चाहे 100 है, चाहे वो रिएक्शन फिर बाद में कम हो गई है, तो कंसंट्रेशन पे कहीं पे भी हाफ लाइफ डिपेंड नहीं कर रही। इसीलिए हम कहते हैं कि अगर हमारे पास न्यूक्लियाइड 100 से 50 होने में उसको फर्स्ट हाफ लाइफ 25 मिनट लगे हैं, तो 50 से उसको 25 होने में भी यहाँ पे ज़ीरो नहीं होगा, बल्कि 50 से वो क्या होगा, 25 अगर होंगे तो भी उसको 25 मिनट लगेंगे। फिर ये 25 मिनट क्या है, ये हमारे पास वाई एक्सिस की वैल्यू है, और ये नंबर ऑफ एटम्स हैं जो 100 थे तो भी हमारे पास 25 मिनट आई वैल्यू 50 होने तक, फिर 50 से 25 होने के लिए वाई एक्सिस की वैल्यू फिर हमारे पास 25 ही आई, फिर 25 से 12.5 होने के लिए भी वाई एक्सिस की वैल्यू 25 ही आई। इसका मतलब है कि हाफ लाइफ जो होती है वो पैरेलल टू द एक्स एक्सिस होती है फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एंड फॉर द रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स डिसइंटीग्रेशन के लिए जो उसकी हाफ लाइफ होगी वो हमेशा कांस्टेंट रहती है। तो इस ग्राफ से हम इसकी हाफ लाइफ। जी तो स्टूडेंट, उम्मीद है आपको ये लेक्चर अच्छी तरह से समझ आ गया होगा, और बाकी जो हमारे ये 3 रिमेनिंग स्लाइड्स हैं, ये जो हमने अभी सारे बोर्ड्स के ऊपर उनको सॉल्व किया है मैथमेटिकली, उन्हीं को जो है दोबारा से यहाँ पे थोड़ा सा रिव्यू किया, और आप इसको अच्छी तरह से देख लेंगे तो आपको यहाँ से भी मज़ीद और भी डिटेल से समझ। तो ये हमारा लेक्चर था रेडियो एंड न्यूक्लियर केमिस्ट्री के बारे में। इंशाल्लाह हम फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।